Now what is velocity? Basically, velocity is rate of change of displacement upon time. So let's say at time t1 your object is at x1, and at time t2 your object is at x2. So the velocity, the average velocity, since velocity is a vector quantity, it depends on your, what I can say, it depends on, just give me a minute. Okay, so it depends on value as well as direction both. So V average is your displacement upon time. So basically displacement is x2 bar minus x1 bar upon change in time is t2 minus t1. So this is V average. Displacements, your velocity can be defined as rate of change of displacement per unit time. Is this very clear? What I said? Samjha? Yes, ma'am. Yeah. And of course, your displacement is measured in SI unit is meter and time is seconds. So SI unit of your velocity is meter per second. Clear? Of course, velocity is a vector quantity because it depends on value as well as direction. Hope you are clear with this. Yes. Okay. Next is instantaneous velocity. Now this is important. Now what is this instantaneous velocity? ये word itself बता रहा है. Instantaneous means at any instant of time. हम बोलते हैं ना मुझे ये instantly करके चाहिए. Instantly मतलब उसका time बहुत ही कम होना चाहिए करने का. When I say someone that I want everything to be done instantly. Instantly मतलब कम से कम time में वो काम complete करके चाहिए. So instantaneous velocity का मतलब भी है कि instantly आपको velocity निकालनी है at any instant. ठीक है? So instantaneous velocity can be defined as or can be given as V bar is equals to limit of delta t tends to 0 delta x by delta t. इसका मतलब क्या है? ये लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0. मैं ये बोल रही हूँ कि मैं एक ऐसी वेलोसिटी कैलकुलेट कर रही हूं जिसके लिए मैं बहुत छोटे टाइम के लिए मेरा डिस्प्लेसमेंट देख रही हूँ. आई एम ऑब्जर्विंग टाइम फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम. आई एम ऑब्जर्विंग डिस्टेंस फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम. एंड वो स्मॉल टाइम इतना छोटा टाइम है, द टाइम इज सो स्मॉल that the time is tending to 0. ये लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 का मतलब होता है कि मैं जिस इंटरवल के लिए, जिस टाइम के लिए मैं मेरा डिस्प्लेसमेंट देख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज योर वेलोसिटी. तो जो डिस्प्लेसमेंट मैं देख रही हूँ जिस टाइम के लिए, वो टाइम मेरा बहुत ही छोटा है. और वो इतना ज्यादा छोटा है कि वो डेल्टा टी टेंस टू 0 होता है. डेल्टा टी टेंस टू 0 मतलब वो 0 के को अप्रोच कर रहा है. 0 को अप्रोच कर रहा है मतलब वो इक्वल टू 0 नहीं है, पर 0 को अप्रोच कर रहा है मतलब इट कैन बी 0.0001 बट इट इज नॉट इक्वल टू 0. समझा? सो आई एम ऑब्जर्विंग डिस्प्लेसमेंट for a very small interval of time, and it is such that
that small interval of time is tending to 0. समझ में आया what I said? Yes. But it is not equal to 0. Tending to 0 मतलब 0 को अप्रोच कर रहा है, बट 0 के बराबर नहीं है. मतलब मैं बहुत ही छोटे टाइम के लिए मेरा डिस्प्लेसमेंट देखकर उन दोनों को डिवाइड करके वेलोसिटी निकाल रही हूँ. Is this very clear what I said? मैम टेंडिंग टू 0 मतलब कि 0 नहीं है ना, मतलब 0.1 0.2 वैसा है ना, 0 नहीं होगा 0. ना. Exactly 0.1 भी बहुत बड़ा हो गया. मतलब it is going to 0.00001. मतलब it will be approaching to 0 but not equal to 0. It can be anything, but it will be a very small interval of time जिसके लिए मैं डिस्प्लेसमेंट देखूंगी और टाइम से डिवाइड उस छोटे से टाइम से डिवाइड करूंगी. तो उस वक्त जो वेलोसिटी मुझे आएगी दैट इज माय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ओके, समझा. सबको क्लियर हुआ व्हाट आई सेड? यस. बिस्मी, दिव्या, आदर्श को तो समझ गया. चलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. आदर्श यू न्यू स्टूडेंट? हाँ मैम, मतलब ऑफलाइन में था, लेकिन अभी ये विलेज आया ना, इसलिए ऑनलाइन पे बैठ रहा हूँ लेक्चर. ओके ओके ओके, ठीक है. सो इज दिस एवरीवन क्लियर व्हाट आई सेड? Yes. चलो. यस. गिव द हेडिंग एज वेलोसिटी. लिखो. Velocity can be defined as rate of change of displacement per unit time. Velocity can be defined as rate of change of displacement per unit time. Velocity can be defined as rate of change of displacement per unit time. Rate of change of displacement per unit time. Done? तो कैमरास ऑन करो आप लोग. स्विच ऑन योर कैमरास. दिव्या, आदर्श, अगर तुमको पॉसिबल है तो ऑन करो, नहीं तो रहने देना. दिव्या, स्विच ऑन योर कैमरा. मैम कल से ऑन करता हूँ, अभी मेरे को पता नहीं था कैमरा ऑन करना होता है. इट्स ओके. आगे लिखो. लेट x1 बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. Let x1 be the position of the particle at t1. Let x1 be the position of the particle at t1. हेलो मिस. Yes, बोलो. मिस आप ये वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, कौन सा? स्टार्टिंग से मैं लेफ्ट हो गई थी, लाइट चली गई थी मिस. अच्छा ठीक है. एक काम करो साक्षी. साक्षी राइट? साक्षी, Yes, you just miss. write the definition, then I'll revise it, तो तुम्हारा हो जाएगा. तो अभी Yes, तुमने miss. तुम वेलोसिटी का हेडिंग दो, वहां पे 2 लाइन छोड़ दो, वहां पे भी मैंने कुछ लिखवाया है. अभी जो बोल रही हूँ उसके बाद वो लिखो, ठीक है? Yes, miss. ठीक है. Let x1 be the position of particle at t1 and let x2 be the position of particle at t2. Let x1 be the position of particle at let x1 be the position of particle at t1 and let x2 be the position of particle at t2. उसके बाद ये लिख के ले लो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है. V averages displacement upon time. V averages x2 minus x1 upon t2 minus t1. SI unit is meter per second and velocity is a vector quantity. मिस पार्टिकल के बाद आपने क्या बोला था?
x1 be the position of the particle at time t1 and x2 be the position of particle at time t2. Okay, miss. उसके बाद एज इट इज ये पूरा यहाँ तक लिख लो एंड डायमेंशंस खुद से लिखो. यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो गया ना, खुद से डायमेंशंस लिखो. मैम कहाँ से स्टार्ट करना है? एकदम स्टार्टिंग से लिखना है? नहीं, यहाँ से वी एवरेजेस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. हो गया. यस मैम, हो गया. नेक्स्ट लिखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. डायमेंशन क्या लिखा? L1 t minus 1. यस, L1 t minus 1. नेक्स्ट लिखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. Instantaneous velocity can be defined as velocity at any instant of time. Instantaneous velocity can be defined as velocity at any instant of time. Velocity at any instant of time. It is the limiting value of average velocity. It is the limiting value of average velocity for a very small interval of time. For a very small interval of time. ब्रैकेट में लिखना डेल्टा टी. For a very small interval of time, ब्रैकेट में लिखना डेल्टा टी. For a very small interval of time, ब्रैकेट में लिखना डेल्टा टी.
such that this delta t is approaching to 0, such that this delta t is approaching to 0. ये लिख के ले लो फॉर्मूला. ये होने के बाद राइट दिस v बार इज इक्वल्स टू dx by dt. डेल्टा डेल्टा के बदले हम d से भी रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव्स. That is change in x with respect to change in time. This means change in x with respect to change in time. Or it is also known as derivative of x with respect to time. डेल्टा x by डेल्टा t लिखने के बदले आप ऐसे भी लिख सकते हो dx by dt, चेंज इन x with respect to change in time. या फिर ऐसा भी लिख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ x. डेरिवेटिव का मतलब ये होता है चेंज. डेरिवेटिव ऑफ x with respect to time. Clear? Yes, ma'am. Okay. Now we are going to deal with some graphs. So look at graphical representation of a motion. Give the next heading as graphical representation of a motion. Graphical representation of a motion. इसमें पहला हेडिंग दो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. Give the first heading as object at rest. उसके बाद कुछ मत लिखो. Just look at this graph. This is y-axis and this is x-axis. Y-axis पे मैंने position रखा है, which is represented by x. Y-axis पे मैंने क्या रखा है? What I have kept on y-axis? X. एक मिनट. What I have kept on y-axis? It is position. और x-axis पे मैंने क्या रखा हुआ है? What I kept on x-axis? क्या है बोलो? x-axis. सी एक्सिस बोल रही हूँ मतलब आप y एक्सिस और x एक्सिस को देखो. ये आपका x एक्सिस. यहाँ पे कंफ्यूजन ये होगा कि पोजीशन को भी x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस लाइन को भी x एक्सिस बोलते हैं. एक्सिस और पोजीशन अलग अलग चीजें हैं. ये जो स्ट्रेट ऐसे खड़ी रहती है ये y एक्सिस होती है. आपने ग्राफ बनाया है या नहीं लोअर स्टैंडर्ड्स में? बनाया है मिस. ये वाला जो साइड होता है इसको y एक्सिस बोलते हैं और ये वाला जो साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस. तो ये जो y एक्सिस पे उस पे हमने क्या प्लॉट किया है? पोजीशन. क्या प्लॉट किया है? पोजीशन. और पोजीशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स. एक्स से.
मतलब वाई एक्सिस पे हमने पोजीशन रखा है जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. इज दिस एवरीवन क्लियर? कंफ्यूजन Yes, नहीं miss. करना है. और एक्स एक्सिस पे हमने किसको रखा है? एक्स एक्सिस को हमने किसको रखा है? टाइम को. वाई एक्सिस पे हमने पोजीशन बनाया है और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम का स्केल लिया है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस. Yes. सो अगर मैं पोजीशन बोलती हूँ तो वाई एक्सिस देखना है और अगर मैं टाइम बोलती हूँ तो एक्स एक्सिस देखना है. एक्स एक्सिस देखना है. सो अगर आप पोजीशन देखो, समझो दिस इज 2 मीटर, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. देखो टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम को आप नहीं रोक सकते. पहले इट इज 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड. टाइम बोला तो एक्स एक्सिस देखो. 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड. ये टाइम ऐसा बढ़ता जाएगा. पर कैन यू सी द पोजीशन? पोजीशन बोला तो वाई एक्सिस देखो. 1 सेकेंड के लिए भी 2 ही मीटर है, 2 सेकेंड के लिए भी 2 ही मीटर है, 3 सेकेंड के लिए भी 2 ही मीटर है, 4 सेकेंड के लिए भी 2 ही मीटर है. हर जगह पे क्या आपको पोजीशन चेंज होता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं, सेम है. नहीं. सेम है. So this is the graph which is representing the object is at rest. समझे? यस. Yes. मतलब हर टाइम पे पोजीशन 2 ही मीटर पे है. नाउ T1 पे लेट्स से पोजीशन x1 पे है, T2 पे पोजीशन x2 पे. पर हमें पता है x1 और x2 एक दूसरे से अलग है या सेम ही है? सेम है. सेम है. देखो x1 भी 2 मीटर और x2 भी कितना है? 2 मीटर. 2 मीटर है. सेम है दोनों. और हमें पता है स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है. स्लोप, व्हाट इज स्लोप? स्लोप निकालते वक्त आपको याद है क्या करते थे? वाई एक्सिस का पॉइंट को माइनस करते थे, डिवाइड बाय एक्स एक्सिस के पॉइंट को माइनस करते थे. याद है ऐसा स्लोप निकालते थे? Yes, miss. वाई एक्सिस में हमने क्या रखा है? व्हाट आई हैव केप्ट एट वाई एक्सिस? बोलो. व्हाट आई हैव केप्ट एट वाई एक्सिस? वाई एक्सिस पे मैंने क्या रखा है? टेल मी. x1 है पोजीशन. पोजीशन रखा है. तो सेकंड पोजीशन माइनस फर्स्ट पोजीशन. और एक्स एक्सिस पे मैंने क्या रखा है? टाइम. तो सेकंड पोजीशन का टाइम माइनस फर्स्ट पोजीशन का टाइम. ये देखा हुआ सा लग रहा है कि ये फॉर्मूला? यस. Yes, Yes. miss. इसका फॉर्मूला ये है. स्लोप का फॉर्मूला है. स्लोप के अलावा ये किसी और चीज का भी फॉर्मूला है. x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1. देखो जरा अभी लिखवाया मैंने, किसका फॉर्मूला ये? वेलोसिटी. यस. मतलब x पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देता है. और हमें पता है x2 और x1 दोनों पोजीशन सेम है, तो यस. दोनों सेम है तो दिस माइनस दिस विल गिव यू 0. मतलब इसका स्लोप क्या है? 0. स्लोप Zero. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? और हमें पता है ये स्लोप का फॉर्मूला हमको वेलोसिटी दे रहा है, तो वेलोसिटी भी ऑब्जेक्ट की क्या है? 0. ये समझ में आया Zero. सबको? यस. Yes. Yes, एक miss. ग्राफ ड्रॉ करो और एज इट इज लिख के ले लो. Miss हो गया ये. डन विद दिस? Yes. यस मैम, हो गया. चलो, the next heading is B. Object is moving along. मतलब ये समझ गया आपको पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देता है. ये क्लियर हुआ? यस. Yes, miss. Now object is moving along positive x direction. Give the next heading as object is moving along positive x direction. X axis direction नहीं बोल रहा है,
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बोल रहा है, मतलब पॉजिटिव पोजीशन की तरफ चल रहा है ऑब्जेक्ट. तो दिस इज एक्स, दिस इज टॉइंग. ऑब्जेक्ट ऐसा चल रहा है. T1 के लिए समझो इट इज x1. T2 के लिए इट इज x2. Let's calculate the slope. This is T2 x2 and this is T1 x1. तो पहला हेडिंग दिया आपने, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. यस. ठीक है. सो अब मुझे देखो, स्लोप तो हमें पता है. व्हाट इज द फॉर्मूलाज फॉर स्लोप? x2 minus x1 t2 minus t1. T2 अब बताओ minus मुझे, T1. देखो x2 बड़ा है, x1 छोटा है, राइट? यस. T2 बड़ा है और T1 छोटा छोटा है. है. तो ये x2 minus x1 करोगे तो भी एक पॉजिटिव आंसर आएगा और T2 minus T1 करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा. मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. ये वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते, मींस देयर इज सम वेलोसिटी, ऐसा बोल सकते हैं. ये समझा? यस मैम. मैम एक और बार रिपीट करोगे, मतलब एक और बार वापस से यस, एक्सप्लेन. मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ. मतलब T1 टाइम पे ऑब्जेक्ट x1 पे था, T2 टाइम पे ऑब्जेक्ट x2 पे आ गया, T3 पे x3 पे, T4 पे x4 पे. मतलब उसका पोजीशन बढ़ता जा रहा है. पहले उसने 1 मीटर कवर किया था, अभी वो 2 मीटर टाइम. 1 बजे उसने 1 मीटर कवर किया, 2 बजे उसने 2 मीटर कवर किया, 3 बजे उसने 3 मीटर कवर किया, 4 बजे उसने 4 मीटर कवर किया. यस, समझा? समझा. हाँ. सो ये ऑब्जेक्ट ग्राफ में पोजीशन भी इंक्रीज हो रहा है ना, मतलब हाँ पोजीशन और टाइम दोनों. हाँ ठीक है, हाँ. समझा. सो ऑब्जेक्ट इज मूविंग along positive x direction with constant velocity, ऐसा लिखो, with constant वेलोसिटी. velocity. देखो 1 मीटर के लिए उसको 1 घंटा लगा, तो 2 मीटर के लिए उसको मैंने क्या बोला, कितना बजा? 2 आवर. 2 आवर्स. 3 मीटर के लिए 3 3 आवर्स. 3 आवर्स. hours. तो ऐसे कम ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं, परफेक्ट. एक एक इंक्रीज मीटर हो के रहा लिए है. 1 घंटा ले रहा है ना. यस. Yes. तो ना वेलोसिटी बढ़ रही है ना वेलोसिटी कम हो रही है, सेम वेलोसिटी से चल रहा है वो. सो ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी. क्लियर? यस. Yes. चलो ये लिख के ड्रॉ करके ले लो और लिख के ले लो. तो यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट आएगा. इतना ले लो, फिर साक्षी का वो डाउट क्लियर करते फिर आगे जाता. Yes, miss.
Done? No. Yes, ma'am, done. या फिर पहले ग्राफ कंप्लीट करते हैं साक्षी, देन वी विल गो टू द वेलोसिटी अगेन. ठीक है? चलेगा मिस. ओके, चलो नेक्स्ट. सी ऑब्जेक्ट is moving along negative x direction. x एक्सिस डायरेक्शन नहीं बोला मैंने, नेगेटिव x डायरेक्शन बोला, मतलब पोजीशन नेगेटिव होगा. with constant velocity. देखो, this is x1 at time t1. This is x2 at time t2. देखो x1 बड़ा है और x2 छोटा है. Is this clear? Yes. So object negative x direction में चल रहा है with constant velocity. Slope again x2 minus x1 upon t2 minus. T2 minus T1. मुझे बताओ स्लोप पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? मैम नेगेटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव आएगा. x2 छोटा है इस बार. यस, छोटे में से बड़ा माइनस करोगे ना. x2 छोटा है और x1 बड़ा है. Yes. You'll Yes, get तो a नेगेटिव negative आएगा. slope. Clear with this? Yes, मैम. Yes. हेडिंग दे दो और लिख लो. Done with this graph? Yes, मैम. नेक्स्ट लिखो ऑसिलेटरी. ठीक है, हमने पेंडुलम देखा था. पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, इसको हम पॉजिटिव लेंगे. फिर नेगेटिव डायरेक्शन में आता है, फिर पॉजिटिव में जाता है, फिर नेगेटिव, ऐसे घूमता है ना. तो उसका ग्राफ बनाओगे. पहले पॉजिटिव में जाता है, फिर नेगेटिव पे जाता है, फिर पॉजिटिव में जाता है, फिर नेगेटिव में जाता है. दिस इज द ग्राफ. देखो, पहले पॉजिटिव में जा रहा है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में. दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग ऑसिलेटरी मोशन. पहले पॉजिटिव गया, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव. समझा? Yes. Yes. लिख लो. दिस इज डी. मैम ड्रॉ करना है. हाँ,
ये नहीं है, ये पेंडुलम का ड्रॉ किया था, यहीं पे ग्राफ खत्म हो रहा है। हो गया मैम। हो हो गया। गया मिस। ओके, देखो साक्षी, हमने वेलोसिटी डिफाइन किया। वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझो टाइम t1 पे ऑब्जेक्ट इज एट x1 एंड Yes, टाइम ma'am. t2 पे ऑब्जेक्ट इज एट x2, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, मतलब सेकेंड पोजीशन माइनस फर्स्ट पोजीशन अपॉन सेकेंड टाइम अपॉन फर्स्ट टाइम। ठीक है, Yes, ma'am. देन वेलोसिटी इज, सिंस ऊपर मीटर है नीचे सेकेंड, सो SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड एंड डायमेंशन फॉर वेलोसिटी इज L1 t L1 माइनस T minus 1. ऊपर की वजह से L1 और टाइम की वजह से t माइनस 1। ठीक है, Yes, नेक्स्ट इज miss. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस ये वर्ड ही बोल रहा है। जब हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस, मुझे ये इंस्टेंटेनियसली करके चाहिए, या मैं अगर आपको कोई काम देती हूँ एंड आई से आई वांट इट इंस्टेंटली, इंस्टेंटली मतलब उसको कम से कम टाइम लगना चाहिए, तुरंत. तुरंत बोल सकते हैं। ठीक है, सो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। मतलब मैं Yes, बहुत miss. छोटे टाइम के लिए मेरा डिस्प्लेसमेंट देख रही हूँ, और मेरा वो जो छोटा टाइम है, दैट स्मॉल टाइम इज अप्रोचिंग टू 0। अप्रोचिंग टू 0 का मतलब होता है, ये लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0 का मतलब होता है कि आई एम टेकिंग वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल विच इज अप्रोचिंग टू 0। अप्रोचिंग टू 0 का मतलब होता है कि 0 को अप्रोच करना, 0 के आसपास जाना, 0 के बराबर नहीं होता, इट इज नॉट इक्वल टू 0। समझा इसका मतलब क्या है? मीन्स दैट टाइम इज वेरी 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 स्मॉल, बट इतना स्मॉल इंटरवल नहीं है कि एकदम 0 हो जाए। इट कैन बी मतलब वो कभी भी टर्म 0.0001। उसका मतलब 0 पे जाएगा ही नहीं. मतलब नहीं, उससे आगे हो सकता है पर 0 पे नहीं जाएगा. नहीं जाएगा। इट कैन बी Okay. 0.00001, बट इट विल नॉट बी इक्वल टू 0। Okay, miss. सो इंटरवल आई एम टेकिंग वेरी स्मॉल, इतना छोटा कि मैं बोल रही हूँ कि वो 0 को, मैं इतना छोटा इंटरवल ले रही हूँ कि इट इज अप्रोचिंग 0, बट इट इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0. लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0 यही समझाता है कि मैं Yes, जो miss. टाइम इंटरवल ले रही हूँ वो बहुत ही छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, और इतना छोटा है कि वो 0 को अप्रोच कर रहा है। उस छोटे से टाइम इंटरवल के लिए मैं व्हाट आई कैन से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देख रही हूँ, उन दोनों का डिवीजन करके मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रही हूँ। बस उस छोटे इंस्टेंट के लिए मैं डिस्प्लेसमेंट देखकर वेलोसिटी निकाल रही हूँ। समझा? Yes, miss. और ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को हम डी एक्स बाई डी टी के टर्म से भी लिखते हैं। डी बाई डी मतलब होता है चेंज, हम इसको ऐसा बोलते हैं चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, या फिर चेंज को मैथमेटिक्स के टर्म में, मैथमेटिक्स वर्ड में बोल सकते हो, या मैथमेटिक्स लैंग्वेज में चेंज को डेरिवेटिव भी बोलते हैं। डेरिवेटिव तो यहाँ पर हम कैसे बोल रहे हैं, चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, तो Yes, डेरिवेटिव के miss. टर्म में हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये डेरिवेटिव ये अकेला वर्ड ही बता देता है कि यू आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट। Change in. समझो? Yes, miss. ओके, चलो एवरीवन, अभी ये जो इतना मैंने ग्राफ सिखाया और जो डेफिनेशन करवाया, चलो फटाफट लर्न करके दो, बट कैमराज ऑन करके। चलो, जिनके कैमराज ऑन कर सकते हैं, स्विच ऑन योर कैमराज एंड लर्न एंड गिव इट टू मी मिस फास्ट। ओके एक मैम। हफ्ते से ना मेरे घर पे इलेक्ट्रिशियंस का काम चल रहा है, वो इंटीरियर करवाने के लिए, तो पूरा घर पे इट्स कचरा ओके लग रहा है. साक्षी, चलेगा, नो इशू। तुम पढ़ के दो ऐसे ही, बाकी लोग कैमराज ऑन करो, विस्मी, दिव्या, दिव्या कैमरा ऑन करो। चलो पढ़ के दो इतना फटाफट, फिर हम नेक्स्ट जाएंगे। टेक 5 minutes एंड लर्न।
डन. यस मैम. Give the next heading as object moving with non-uniform velocity. Object is moving with non-uniform velocity. So अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि अब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाओ या एक परफेक्ट शेप का ग्राफ बने. व्हेन इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो ऑब्जेक्ट का जो ग्राफ बनेगा इट विल बी लाइक अ कर्व. सो लेट्स से एट t1 टाइम पे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और t4 टाइम लेते हो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है. सो t1 से t4 का इंटरवल. अब देखो जब कोई चीज नॉन यूनिफॉर्म चलती है ना, व्हेन एनीवन मूव्स विद अ नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म का ऐसा कंडीशन है कि 1 मिनट में इट कैन कवर 1 मीटर, वहीं पे 2 मिनट में सिर्फ आधा मीटर कवर हो रहा है, फिर 3 मिनट में 4 मीटर कवर हो गया. मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 1 मिनट में 1 मीटर तो 2 मिनट में 2 मीटर तो 3 मीटर में 3 मिनट में 3 मीटर एंड सो ऑन. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस मैम. सो हम यहाँ पे एवरेज के साथ नहीं चल सकते कि ऑन एन एवरेज देखे कि कितना चल रहा है. हमको यहाँ पर इंस्टेंटली चलना पड़ेगा, हर एक टाइम पे देखना पड़ेगा. हैव टू लुक एट एवरी इंस्टेंट. ऐसी ही नॉन यूनिफॉर्म कंडीशंस में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का यूज करते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? जहां पर हम ओवरऑल देखकर बात नहीं कर सकते, हमको हर एक इंस्टेंट पे अपना ऑब्जर्वेशन रखना होगा. इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? यस. यस मैम. For non-uniform velocity, you get a curvy graph. So let's say कि मैंने T1 और T4 मैंने एक बड़ा टाइम इंटरवल दिया और उसके बीच में मैं देख रही हूँ कि कितना पोजीशन चेंज हो रहा है. तो एज आई सेड कि यहाँ पर बड़ा टाइम इंटरवल करके हम देख नहीं सकते. क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है. तो मैंने क्या कहा कि चलो टाइम को थोड़ा और छोटा कर देते हैं. ये सो लेट्स से इसको T2 और T3, और जब हमने यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ किया तो बड़े वाले टाइम के लिए ए भी स्लोप दे रहा था. छोटे ये जो T2 और T3 है, जब आप T2 T3 को अटैच करोगे सो उसके लिए ये जो लाइन बनेगा CD, ये CD का स्लोप आपको वेलोसिटी देगा T2 और T3 के लिए. ऐसे करते करते हम टाइम के इंटरवल को छोटा करते जाएंगे और मैम ये और भी छोटा हो सकता है ना? हाँ हाँ. हाँ इतना छोटा कर देंगे विच विल बी इक्वल टू T0. अगर हम बहुत छोटा टाइम इंटरवल लेकर फिर हम लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज योर PQ, तो वो लाइन हमने इंटरवल इतना छोटा कर दिया है
कि वो लाइन इस कर्व के लिए टेंजेंट बन जाएगा, और इस टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का मतलब होता है लाइन मीटिंग एट अ सिंगल पॉइंट, उस टेंजेंट का स्लोप हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल कर देगा। समझा क्या किया? फिर से समझाते हो, देखो एक्चुअली ये सारी चीजें ना ऑफलाइन इज मच बेटर, बट ठीक है। नहीं मैम समझ रहा है। दिस इज एक्स वर्सेस टी, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, सॉरी नॉन यूनिफॉर्मली चलता हुआ ऑब्जेक्ट का ग्राफ है। जब कोई चीज नॉन यूनिफॉर्म चलती है तो परफेक्ट स्ट्रेट लाइन जैसा कभी कुछ नहीं बनता, कुछ ऐसा कर्व जैसा कुछ बनता है। तो समझो पहले मैंने टाइम कितना रखा, पहले मैंने बड़े टाइम के लिए देखा, T1 से T4, देखो बड़ा इंटरवल है, उसके लिए जब मैंने यस ऐसे लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन ए बी, इस लाइन ए बी का ग्राफ मुझे वेलोसिटी देगा, सॉरी इस लाइन ए बी का स्लोप मुझे वेलोसिटी देगा। पर मैंने बोला कि यहाँ पर ये इतना बड़ा इंटरवल काम नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर बड़ा इंटरवल लेके बात नहीं कर सकते, एवरी इंटरवल पे वेलोसिटी इज चेंजिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये समझा आपको? यस मैम। यस मैम। फिर हमने क्या किया, हमने इंटरवल को छोटा किया, T2 T3, और इसके लिए हमने ऐसे लाइन ज्वाइन की विच इज योर C एंड D। तो T2 और T3 के लिए ये लाइन CD मुझे स्लोप देगा, जो स्लोप मुझे क्या निकाल कर देगा, इसका स्लोप मुझे क्या निकाल कर देगा, वेलोसिटी। पर मैंने कहा कि ना मुझे ये बड़ी वाली वेलोसिटी, बड़ा वाला लाइन कोई परफेक्ट वेलोसिटी का वैल्यू दे सकता है, ना ये वाला लाइन मुझे कोई परफेक्ट वेलोसिटी का वैल्यू दे सकता है, क्योंकि एवरी टाइम माय वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो हम क्या करेंगे, इंटरवल को ऐसे छोटा, पहले इंटरवल वाज T1 टू T4, इतना बड़ा इंटरवल था, फिर हमने इंटरवल को T2 टू T3 थोड़ा छोटा किया, ऐसे इंटरवल को छोटा करते 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 एकदम छोटा सा इंटरवल ले लेंगे, और जब उस छोटे से इंटरवल के लिए जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन हमारे इस कर्व का टेंजेंट टेंजेंट। होगा, समझे? यस और वो मैम। टेंजेंट होगा, उसको हम टेंजेंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो इस कर्व को सिर्फ एक छोटे से पॉइंट पे टच करेगा, और जब हम इस टेंजेंट का स्लोप लेंगे, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ एक छोटे से पॉइंट के लिए मुझे मिल रहा है ना, एक छोटे से इंटरवल के लिए मिल रहा है। सो ये मुझे इस स्लोप का टेंजेंट मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, समझे? समझा समझा। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो हमें पता है, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा। देखो इंटरवल टाइम डेल्टा टी आपका टी नॉट है, देखो टी नॉट मैंने इतना छोटा इंटरवल लिया है कि उसके लिए अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो इट विल, एक पॉइंट जैसा है, वो लाइन मेरे कर्व को एक पॉइंट पे मिल रहा है, दैट पॉइंट इज दैट इंटरवल। और मैंने कहा वो इंटरवल हमको इतना छोटा रखना है, इट इज अप्रोचिंग टू 0, पर 0 है क्या, दोनों एक दूसरे के ऊपर है क्या? नहीं। उस छोटे से इंटरवल के लिए मुझे, जब मैं उस छोटे से इंटरवल के पॉइंट से लाइन ड्रॉ करूंगी तो इट विल फॉर्म अ टेंजेंट, उसका स्लोप विल गिव मी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन में हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, मतलब हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। इज दिस वेरी क्लियर? यस मैम। यस मैम। सो ड्रॉ दिस ग्राफ। मैम ये ड्रॉ करना है? हाँ, पहले T1 T4 बनाओ, उसका लाइन कर्व के अंदर ज्वाइन करो, फिर T2 T3 बनाओ, उसका लाइन स्केल से कर्व के अंदर ड्रॉ करो, फिर एक छोटा सा बहुत पतला इंटरवल लो, उससे डॉट बनाओ और उससे टेंजेंट ड्रॉ करो। मैम नॉन यूनिफॉर्म सिर्फ कर्व शेप के लिए होगा ना, मतलब ऐसा कर्व सरफेस टाइप में? क्या? नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बस कर्व टाइप के मोशन में ही होगा ना, मतलब कि कर्व जो होगा? हाँ, ओके ओके। मतलब कर्व टाइप का मोशन ऐसा जरूरी नहीं है, सीधे सीधे चलते हो तो भी आप नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल सकते हो। कभी आपने गाड़ी धीरे चलाई, काफी तेजी से चला दी, फिर धीरे चलाई, फिर काफी तेजी से चला दी,
उसका भी ग्राफ बनाओगे तो आपको ऐसा ही ग्राफ मिलेगा। ओके ओके मैम। ऐसे कर्वी चलने का ही जरूरत नहीं। Take a screenshot of this and draw it properly. Done? Yes. यस So properly इसको draw करके रखो and then after this we will continue for next time. यहाँ तक पढ़ के आओ, ठीक है?